So good morning class 11 students. We are doing this chapter permutation and combinations, and we have started combinations, but we have left one question of 7.3 11th question. So I will solve that question. This is 7.3 question number 11. If you have discussed this, if you have know the answer, then very good. If you are not done the answer, pay attention. The word is permutations. Be arranged, start with P and with S. There are three parts. Okay. So what are those three parts? Permutation. Permutation. Okay. The word should start. First part is word start with P and with S. So P and S should not change their places. Okay. And the question is how many ways the letters of word be arranged. So we have to find all the arrangements. So how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 factorial upon. And this is any word repeated, just pay attention. Irritations. T-I-T-I. So T is 2 times, right? So 2 factorial for T. E is one time. R, M, U, T, A, I, O, N. Any other words repeated? Permutations from here to here. Just pay attention. E, R, M, U, T, A, T, I, O, N. So in other words, 10 factorial upon 2 factorial. That should be the answer. So that is actually very simple one if you understand this. 11 into this is actually 2 factorial and rest you have to divide. So 10 factorial is a big number. You have to find that factorial. So what is that number? 1 into 2 into 3 into 4 into and so on till 10 upon 1 into 2. Now see, 7 factorial is 5040. So we will start with 5040 into 8 into 9 into 10 upon 1 into 2. So now we can just cancel this much. 4. 9 goes to 36. 36 multiplied by 50400. That is our answer. We can even do this multiplication if you want. Like this. 6 over the 24, 6 5 the 30, 3 4 the 12, and 5 is the 15. So 4 4 1 8 1. So 1 8 1 4 4 0 0. That should be the answer. Okay, very simple one. First one is just simple. 10 factorial divided by 2 factorial. Why 2 factorial? Because there are 2 t's. We will just quickly write the other two answers so that we don't have to worry about the answers. Just the method is important. And if you are those who have tried, very well done. Those who have not tried, if you are not able to get the answer, don't worry. Okay. 181444400. That is the answer. The second part answer is I am writing it here. 2419200. Third part is 25401,600. So the questions, the calculations are lengthy, but the question is easy if you understand. So we'll just come back to the second part. The second part, the question is again we have to look at permutations, and vowels are all together. Vowels. So what are the vowels? A, E, I, O, U. But here, what are the vowels here in this question? What are the vowels in this question? Let us see. E is there, U is there, A is there, I is there, O is there. So A is there, A, E, I, O, U. All the vowels are here. All the vowels are here. So let us do one thing. Let us consider all the vowels as one number, say X. Let's consider S as A, E, I, O, U. Okay. Now total number are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 factorial. But remember, out of this 12, now we have deleted these 5. So how many are left? 12 minus 5 is 7. 7, these 7 number and X will make it 8. So you have to arrange only 8 factorial ways. Right? Now in that 8 factorial, T is not a vowel. So T is repeated 2 times. So divide by 2 factorial. Into these A, E, I, O, U vowels are together, but आपस में भी वो रोटेट हो जाएंगे. मतलब वो साथ में तो रहेंगे लेकिन आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं ना. तो ये टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं. तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को. तो ये आंसर आ जाएगा अपना 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल. अभी बताया था 7 फैक्टोरियल होता है 5040. वहीं से स्टार्ट करते हैं. 5040 इंटू 8. 5 फैक्टोरियल होता है 120 अपॉन 2. इसको सॉल्व कर लेते हैं.
तो मेरे ख्याल से वापस वही आ जाएगा, देखो 12 4 36 है ना, 5040 into 36, okay, and vowels are all together, we have done this. एक बार देख लेते हैं, 12 4 48 होता है बेटा, ठीक है ना, बस एक फैक्टर और आएगा, इंटू 12 कर देना आंसर को। तो देखो 12 पहले आता है 12 से 36 से मल्टीप्लाई करके देखा था अपने, अब इधर 12 4 48 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 आ जाएगा, 5040 480, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तुम, तो जो आंसर आया था ना पहले 181, जो भी आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई कर लेना, आई थिंक 1814400, इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 से, मेरे को लगता है यू विल गेट द आंसर। और 12 इंटू 4 था ना ये, तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस मच एंड चेक ये आंसर आता है नहीं आता है। इनफैक्ट 5040 को अपन क्या करते हैं, 504 को 48 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 2 9 1 4 2, आई थिंक दैट इज द आंसर 2419, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये आंसर बहुत सिंपल है, कैसे क्या बताया था, 12 से 12 में से x को माना a e i o u, तो टोटल हो गए 12 में 7 गए, तो पहले 12 में से 5 गए 7 बचा, और इनको x मान लिया, तो ये 1 7 और 1 8 हो गया, ये 8 फैक्टोरियल, और उनमें से t 2 बार आ रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और a e i o u आपस में 5 तरीके से घूम सकते हैं, मतलब 5 फैक्टोरियल तरीके से, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके वी गॉट द आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होना है, the word start with P, है ना, there are always 4 letters between P and S, इसमें P और S के बीच में 4 लेटर हैं। अब ये नहीं बोला कि S और P आपस में चेंज हो सकते हैं, नहीं सकते, फर्स्ट और लास्ट प्लेसेस नहीं है P और S की, S और P भी हो सकता है, P and S और S और P, तो वो तो आपस में 2 तरीके हो जाएंगे। प्लस वन मोर थिंग इज देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, तो हम क्या करते हैं, P और S की जो पोजीशंस हैं वो थोड़ा शिफ्ट करते हैं। सपोज करो यहाँ पे आता है P फर्स्ट पे, ए जो भी लेटर्स आते हैं मान लो 4 प्लेसेस देता हूँ, 1 2 3 4 प्लेसेस, 5th प्लेस पे ही आ गया। अब यहाँ पर P होगा 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सेकंड प्लेस पे गया 4, थर्ड 4 5 6, ये 7th पे चले गया, फिर P यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 1 2 3 4, तो ये थर्ड पे गया, ठीक है ना, ये पहले 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, तो ये गया 4 5 6 7 है ना, और S गया 8 पे, फिर ये P गया 4 पे, तो S गया 9 पे, फिर P गया 5 पे, तो S गया 10 पे, फिर P गया 6 पे, तो S गया 11 पे, P गया 7 पे, S गया 12 पे, बस 12 लेटर्स थे, तो ये पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7, P के लिए पोजीशन है और S के लिए पोजीशन है, हमेशा 4 लेटर्स आते रहेंगे। P और X हमने फिक्स कर दिया कितने तरीके से, 7 तरीके से, तो 7 तो ये हो गया, ठीक है, और S और P आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो एक बार X भी ले लेंगे तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है ना, P एंड S कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो 7 तो ये हो गया, इंटू 2 कर दिया, इंटू अब आपके पास जो भी लेटर बचे हैं ना सर, उनको सब अरेंज कर दो, P और S को एक तरफ अरेंज करके बाकी जो लेटर्स बचे वो क्या कौन कौन से हैं, वो 10 लेटर हैं, तो 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज नहीं है, लेकिन उसमें T 2 बार आएगा, तो 2 फैक्टोरियल तरीके से वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 कट गया, तो हमारा आंसर आएगा 7 इंटू 10 फैक्टोरियल, दैट्स द आंसर। और अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा ये 7 इंटू 7 फैक्टोरियल मैंने बताया था 5040 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 9 से 72, 72 इंटू 7, तो 72 इंटू 7 इंटू 504 इंटू 100 ऐसे कर देते हैं, तो 504 को 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स सी द आंसर। तो देखो बेटा 4 2 जा 8, ओके, एंड 2 5 2 जा 10, ठीक है ना, 7 4 जा 28 आ गया, 7 5 जा 35, ऐसा रहेगा बेटा। एक बार फिर से देख लें, ये कितना आएगा, 9 8 जा 72 है ना, तो क्या 72 को 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, ये भी करना था, एनी हाउ ये जो आंसर आएगा इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं एक बार, 8 10 3 है ना, 6 3, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा देखो आएगा 7 8 जा 56, 7 3 जा 21 2,
7 6 42 और 2 44 4 7 3 21 और 4 25। तो 2 by 4 2 5 4 1 5 6 0 0। क्या ये आंसर है? 2 by 4 0 1 6 0 0। तो बेटा ये तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का हुआ है, तो देख लेना एक बार और दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, एक बार फिर से समझाता हूँ। ये 7 पोजीशंस हैं और इसकी भी 7 पोजीशंस आ गई। तो 7 इंटू पी और एस आपस में मल्टीप्लाई कर 2 फैक्टोरियल से इंटू 10 फैक्टोरियल। तो देख लेते हैं बेटा कितना आ रहा है। अपॉन 2 फैक्टोरियल इसलिए टी 2 बार आ रहा है, इसको काट देते हैं। तो 7 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 0 4 0 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो बेटा ये हो जाएगा 72। 72 से मल्टीप्लाई किया अपन ने 504 को, वापस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 से मल्टीप्लाई किया था 504 को, ठीक है ना। फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टू द 8 0 5 टू द 10 7 4 द 28, सही है ना। 4 टू द 8 5 2 0 0 5 टू द 10 7 4 द 28 7 5 द 35 8 8 2 6 3। तो आ रहा है 3 6 2 8 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, सही है ना। 8 7 जा 56, यस 8 7 जा 56 और 5 56 और 61 6 7 to the 14 और 6 20 2 7 6 42 to 44 4 and 7 21 and 4 25. Is that the correct answer? Yes, now we have got the correct answer. 2 by 401600. So you got the method, very good. अच्छा, एक थ्योरम मैंने कल करवाया था कॉम्बिनेशन में, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आई एम श्योर यू वुड हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 7.4। उसके बाद हम मिसलेनियस में चलेंगे, पर उसके पहले एक बार कल वाली एक थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी, बट कॉम्बिनेशन के साथ परम्यूटेशन आया था, देन इट बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग। ओके, सो वी हैव गॉट अ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था एनसीआर, एक थ्योरम है एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ऐसे मान लो कि 11 बच्चे हैं और टीचर को 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं उनमें से। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 11 C 3 11 C 3 से 3 11 C द वे ऑफ सेलेक्टिंग 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स। अब मान लो एक बच्चा, अपन इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक बच्चा है और ठीक है, स्टूडेंट नंबर 1, इन 3 में से 11 में से एक बच्चा ऐसा है जो पहली बार में तो मान लो कभी सेलेक्टिंग हमेशा सेलेक्ट होता है और वो सेलेक्ट हो गया, तो हमको 2 और सेलेक्ट करने हैं। तो 2 किस में सेलेक्ट करेंगे? 11 में से पहले तो 1 हटा दो, 10 बच्चों में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 10 सीट। तो एक बच्चा हमेशा सेलेक्ट होता है, 10 सीट आ जाएगा। प्लस अब मान लो वो एक बच्चा कभी भी सेलेक्ट नहीं होता, तो उसको हटा दो भाई, तो सेलेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेलेक्ट किस में से करना है? 10 में से करना है। कितने करने हैं? 3 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो सेलेक्ट नहीं होता। तो पहली बार में हमने वो केस लिया जब वो हमेशा सेलेक्ट होता है, तो वो 10C2 तरीके होते हैं। दूसरी बार में हमने वो केस लिया जब वो कभी सेलेक्ट नहीं होता, तो वो 10C3 तरीके होते हैं। तो देखो आइडेंटिटी क्या बन गई? 11C3 इज इक्वल टू 10C2 प्लस 10C3, क्योंकि टोटल वेज तो 11C3 है। 3 स्टूडेंट टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 11 स्टूडेंट। So this is nothing but n plus 1, this is r, this is n, this is r, this is n, and this is r minus 1, and this is r. So this is the identity NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR, right? So there are many more questions. कई बार क्या होता है, सेलेक्ट करके भी हमको बनाना पड़ता है। तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, एंड देन 7.4 के मिसलेनियस क्वेश्चंस के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Let us discuss one question. How many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants can be formed with the letters of word involute? एक वर्ड दे दिया involute, है ना। involute से कितने वर्ड्स बनेंगे with और without meaning? involute एक वर्ड दे दिया involute। अब हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो each of 3 vowels, अब vowels कौन कौन से हैं इसमें? O है, V है, O है, U है और E है ना, O U E है। तो और each of 3 vowels O U E, और एक और कौन सा? I भी है। एंड कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाकी जो 3 बच जाएंगे n है, v है और t है, ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 वॉवल्स हैं। अभी बोल रहा है 3 वॉवल सेलेक्ट करो पहले और 2 कॉन्सोनेंट, तो इस 4 में से 3 सेलेक्ट करने के तरीके क्या है, 4 से 3, और इस 3 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके क्या है, 3 से 2। ये तो हो गया सिलेक्शन। अब आपके पास 5 जो लेटर्स आ जाएंगे ना, उनको आपको अरेंज करके वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है ना। NVLT 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा NVL भी है, तो ये भी 4 हो गया, 4 से 3 इंटू 4 से 2, ठीक है। अब जो 5 लेटर्स आ जाएंगे 3 प्लस 2, उनको अरेंज कर सकते हैं अपन किसी तरीके से 5 फैक्टोरियल वे से, ठीक है ना। तो दैट इज द आंसर इनटू 5 फैक्टोरियल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। 4 से 3 2 4 होता है, और 4 से 2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, मल्टीप्लाई करके निकालो 6 होता है, और 5 फैक्टोरियल 120 होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो दिस इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 120, दैट इज 2880। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पहले सिलेक्शन करना है और फिर अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में करने को मिलेंगे, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। तो ये आप कर लेना, try all the examples and then try miscellaneous 7, and we'll see more questions tomorrow of this chapter, right? So see you in the next class.